الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑے مختصر وقت میں ہم نے آپ کو تکلیف دی اور آپ تشریف لائے۔ سیاسی صورتحال کی تصویر جس طرح پیش کی جا رہی ہے، ہماری نظر میں تصویر اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، ہم ہمیشہ اس ملک کے آئین اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہ ہم ملک میں انتخابات کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری یہ خواہش ہے کہ نگران حکومتوں کو غیر معینہ مدت کے لیے برقرار رکھا جائے۔ ہم نے ریاست کو درپیش اس صورتحال کو بھی دیکھنا ہے اور ان حقائق پر ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی کسی کی سیاسی موافقت یا مخالفت کی وجہ سے۔ یہاں اسمبلیاں توڑی گئیں، 2 اسمبلیاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ دو اسمبلیوں کے ٹوٹنے کا وقت بھی ایک نہیں ہے۔ دونوں صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول بھی یکساں نہیں ہیں۔ دونوں صوبوں کے انتخابی شیڈول دینے کا اختیار بھی یکساں منصب کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت مردم شماری بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابھی جب 2 صوبوں کا الیکشن ہوگا تو وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور جب آئندہ عام انتخابات ہوں گے جس میں وفاق پارلیمنٹ اور 2 صوبوں کے عام انتخابات ہوں گے، وہاں مردم شماری کی نوعیت اور ہوگی۔ ایک ہی ملک کے اندر مختلف صوبوں کے عوام کی نمائندگی، اس میں کتنا فرق آئے گا، کتنا حق مارا جائے گا ان لوگوں کا جو اس وقت پاکستان کے شہری بننے کو جا رہے ہیں، ووٹ کا مستحق بننے کی طرف جا رہے ہیں، ووٹ کے اندراج کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو محروم کر دینا ہے۔ کیا اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ نے توڑی ہیں، یا ایک لیڈر کے حکم پر انہوں نے عمل کیا ہے اور اس کے کہنے پہ توڑی گئی ہیں؟ ان حقائق کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے کہ آئینی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے دستخط کیے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جس نے حکم دیا وہ بھی تو کوئی پنہا اور خفیہ بات نہیں ہے۔ کیا ہم پاکستان کی سیاست اس طرح کریں گے؟ یہ ہماری اسمبلیوں کی خود مختاری اور اس کی سپرمیسی کی دلیل ہوگی، جس طرح کی اسمبلیاں ہماری توڑی گئیں۔
لیکن ہمیں ضرور اس بات پر تعجب اور حیرت ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس لے کر کہ انتخابی شیڈول کیوں نہیں دیا جا رہا. اے کاش کہ 25 جولائی 2018 کو کے الیکشن کے نتائج میں جب یہاں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں کے دروازوں پر عوام جمع تھی اور پھر پورے ملک میں ملین مارچ ہوئے اس الیکشن کے خلاف، 15 دن تک عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اسلام آباد میں سڑکوں پہ رہا. آج ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس لیے ہم سو موٹو لے رہے ہیں، اور اس وقت جب پورا پاکستان اسلام آباد میں داخل ہو چکا، اس وقت آپ کو ان کی چیخ و پکار سنائی نہیں دی. یہ کیسے کان ہیں کہ جہاں پر 15 لاکھ عوام اسلام آباد میں ہیں، ان کی آواز آپ کو نظر نہیں سنائی دے رہی، اور کہیں پر 1-2 آدمی آپ کے دروازے پر آ کر کھٹکھٹاتے تو ان کی آہٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آپ سو موٹو کر لیتے ہیں اس کے اوپر. 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. یہی سپریم کورٹ تھی جسے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانا ہے. وہ کس آئین کا تقاضا تھا جس نے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانے ہیں؟ آن ریکارڈ ہے آپ کے پاس. اور آج کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر. یہ آئین کا تقاضا ہے. یہی سپریم کورٹ کبھی اس کی نظر میں 3 سال آئین کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی وہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی ایک فرد واحد کو دیتا ہے، اور آج اس کو 90 دن نظر آ رہے ہیں جس میں کہ وہ ہر قیمت پر کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں. سوال بنیادی یہ ہے کہ عمران خان کی 3-3.5 سال کی حکومت نے ریاست کو پہنچایا کہاں تک؟ آج IMF ہمارا بجٹ بنا رہا ہے، آج IMF ہمارے نرخ کنٹرول کر رہا ہے، قیمتیں کنٹرول کر رہا ہے. عوام آدمی کیا جانتا ہے کہ کس طرح IMF کے ساتھ معاہدات کر کے ہماری قیمتوں کا چڑھاؤ اور اتار اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، کس طرح ہمارے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہ پاکستان کے کسی ادارے کے سامنے اس وقت جواب دہ نہیں ہے. اگر اسٹیٹ بینک کا صدر خود اپنی حب الوطنی کی بنیاد پر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت کا احترام کرے اور ان کی رائے کو اہمیت دے تو یہ اس کا اختیار ہے، نہیں تو کوئی پابند نہیں ہے اس بات کا. ملک کو وہاں تک پہنچا دینا کہ آج اگر غریب آدمی کو حکومت روٹی مہیا نہیں کر سکتی، پیاز مہنگا ہو گیا ہے، آلو مہنگا ہو گیا ہے، ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے، آٹا مہنگا ہے، وہاں پر ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم 80 ارب روپے ووٹ کی پرچی کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں. ریاست کو بھی دیکھا جائے اور ریاست کے اندر رہنے والے غریب آدمی کو بھی دیکھا جائے کہ ان 3.5 سالہ پالیسیوں کے نتیجے میں ہم مسلسل دستے چلے جا رہے ہیں. حکومت دن رات ایک کی ہوئی ہے، اور جہاں جاتے ہیں IMF رکاوٹ بن جاتا ہے. کوئی ملک ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تاہم حکومت پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اور خصوصی کے ساتھ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاملات کو طے کریں. ہم ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے غلط فیصلوں کو بھی جانتے ہیں کہ پورے ریجن میں صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. تاہم ہم ایک مثبت انداز کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے ساتھ. ایک طرف آپ کہتے ہیں ملک میں بدامنی ہے، مسلح گروپ ہیں ملک کے اندر، روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں،
पुलिस चौकियों पे हमले होते हैं। आप तो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, कम से कम मैं और मेरे जैसे और बहुत से लोग उन इलाकों में इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकेंगे। क्या आपकी पुलिस में, आपके नीम फौजी इदारों में, आपके फौजी इदारों में इस वक्त इतनी सख्त है कि वो हर पोलिंग स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मुहैया कर सके? ये सारी चीज़ें वो हैं जो रियासत को दरपेश है। इन चीज़ों को हाईलाइट करना है हमने, ताकि आम आदमी के जहन में ये बात आए कि न हमें जमहूरियत से इनकार, न हमें इलेक्शन से इनकार, न हमें इसमें दिलचस्पी की है कोई अबूरी हुकूमत या निगरान हुकूमत जो है उसको तूल दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ रियासत को दरपेश सूरत हाल को हर हवाले से देखना है। महंगाई के हवाले से भी देखना है, पाकिस्तान के ख़जाने में ताकत कितनी है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे वो कितना आपको सिक्योरिटी मुहैया कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में अदलिया की पर भी हमें ज़रूर हैरत है कि उन्होंने सो मोटो लेकर बस अपने आप से फारिग हो गए। एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, बहुत लोग मरूब हैं और दबाव में बात कर रहे हैं कि जी 2 और 3 का फैसला है। हमारे नज़दीक 2 और 3 का फैसला नहीं है, हमारे नज़दीक 4 और 3 का फैसला है। लिहाजा ये पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माहिरीन कानून और आईन को मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो इस पहलू पे आए, गौर करें, जुर्रतमंदाना राय दें इस हवाले से कि जिन 2 जजों की राय को मेंशन किया जा रहा है फैसले में, फिर उसको तादाद में शुमार क्यों नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस पहलू को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये चंद गुजारिशात थी और हमारे इल्म में ये बात आई है। सियासी आदमी देखिए मालूमात की बुनियाद पर भी बात करता है। नोटिस लेना चाहिए इदारों को कि क्या हमारी ये खबर गलत है या सही है, लेकिन छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार और रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मसरूफ़ अमल है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और अगर हमारी मालूमात सही है तो उनको लगाम लगाएं। उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में वक्त से पहले जो है दखल अंदाज ऑफ द रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ जारी रखें। क्यों? तो ये कुछ गुजारिशात थी आज के हवाले से आपके सपुर्द करनी थी। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये फरमाएं कि आपकी इत्तला है इस तरह की कि इमरान प्रोजेक्ट पर असर नो काम शुरू कर दिया गया है। इमरान प्रोजेक्ट पर असर नो काम शुरू कर दिया गया है, इस तरह की इत्तलात आपकी है? देखिए, प्रोजेक्ट एक दफ़ा जब ख़त्म हो जाता है और नाकाम हो जाता है, फिर दोबारा उसको उठाना कोई आसान काम नहीं होता जी। ज़्यादा वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अजीब बात है, कानून सबके लिए, कानून के सामने सब बराबर, लेकिन जिस वक्त कानून उनकी तरफ मुतवज्जह होता है तो फिर गलत होता है। फिर अदालत में जाता है, कानून मेरे खिलाफ हरकत में ना आए, मुझे गिरफ्तार न किया जाए। आज घर में बैठे बैठे झूठ बोल रहा है कि मैं घर में हूं और कहते नहीं हूं। अंदाजा लगाएं, जब वारंट पहुंच गए तो नहीं है और थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आए और कानून को रोकने के लिए अपने वर्करों को लाकर बिठाया हुआ है। ये तो हर पार्टी कर सकती है, हमसे ज्यादा तगड़ा कौन है? लेकिन हमने तो कभी किसी जमाने में भी गिरफ्तारी के सामने इस तरह का रुकावट नहीं बने। इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो एस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और अब उन्हीं को गालियां दे रहे हैं और कल भी कहा कि वो आर्मी चीफ से भी मिलना चाहते हैं। तो समझते नहीं कि पहले एक शख्स की पहचान ये है
कि वो सुबह एक बात करता है तो दोपहर को दूसरी बात करता है तो शाम को तीसरी बात, आज एक बात करता है तो कल दूसरी बात करता है, आज उसका एक मौक़िफ़ होता है तो कल दूसरा मौक़िफ़ होता है, और उनके पीछे लगे हुए कुछ अहमक वो हर बात को कहते हैं कि हाँ ये सही कहा है, तो फिर शाम कहते हैं हाँ ये सही कहा है। कौन सी बात उसकी सही है? किसने कहा है कि इस आदमी के पास विजन है? दुनिया का अहमक तरीन इंसान होगा वो जो कहेगा कि इमरान खान के पास विजन है कोई। हाँ हमाकतें हैं वहाँ, सब कुछ है वहाँ पर, कोई विजन नहीं है, अकल नहीं है। बहन बात पे बात बनाना, कोई संजीदा गुफ्तगू करना, उसकी कोई तौफीक तो हो। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा फैसले जिस तरह हो रहे हैं, ट्रकों की बातें हो रही हैं, ट्रक आ गए हैं उनके लिए खड़े हैं, अदालत का ये जो फैसला है इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं इंतखाबात ये खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में? मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि ये है सारी सूरत हाल। बाकी इंतखाब मैंने नहीं कराने हैं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अगर कोई गवर्नर है तो उसने कराने हैं, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उसने कराने हैं। ये भी पता नहीं है कि कौन उसके लिए अथॉरिटी कौन होंगे उसमें, जी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये फैसला करना अभी बाकी है। इमरान खान ने मुतालबा किया है कि तोशा खाना केस का जो अभी जिस पे उनको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं उसकी लाइव कवरेज दी जाए ताकि आवाम को भी पता चले कि ये केस कितना मज़ाक़ है। क्या कहेंगे आप? बात सिर्फ तो रखाने की नहीं है, सीतावाइट की भी है, फॉरेन फंडिंग केस की भी है, रियासत मदीना की बात कर रहा है। रियासत मदीना मामूली बात नहीं कर रहा, रियासत मदीना की बात कर रहा है। रियासत मदीना की रूह से सीतावाइट के मसले पर क्या सज़ा होनी चाहिए, एक मुसलमान उससे बखूब वाकिफ़ है। जो ब्लंडर हमारे सूबे में किए हैं उन्होंने, मतलब जब्बा वाला केस है, BRT वाला केस है, बिलियन ट्री वाला केस है, ये सारे वो चीज़ें हैं जिसको मैनेज किया जा रहा है। और चोरी भी करता है और फिर अपनी चोरी के खिलाफ केस को भी मजाक केस कहता है। ऐसा इंसान आपने कहीं देखा नहीं होगा। मौलाना साहब ये बता दें कि खान साहब तो एक तरफ कहते हैं कि जेल से मुझे कोई डर नहीं है, जेल जाने का कोई खौफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कोई इस तरह का मामला आता है तो फौरी हिफाजती जमानत या कोई और जमानतें आ जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं किस वजह से जमानतें ले आते हैं, ऊपर से बयानबाजी? बस उनको कुछ एक थोड़ी सी सहूलत हासिल है, जेल जाने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं है। सियासतदान कभी जेल से इतना नहीं भागता जितना कि वो भाग रहा है, और जितना वो डरपोक है इस हवाले से। और जो उनके साथ वाबस्ता लोग हैं, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि या वो लोग हैं जिनके तलवे इतने नाजुक हैं कि वो गर्म ज़मीन पर नहीं रखे जा सकते, या वो ऐसी तितलियाँ हैं जिनके पर जो है वो गर्मी में जलते हैं। इस किस्म की मखलूक मुल्क में तहरीक चला सकती है। जावेद, तहरीक में तो आप 400 आदमी अपने साथ जमा नहीं कर सके, और बड़ी बड़ी बातें करो और फिर बयानबाजी करो बस। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल जिसके दो पार्ट हैं। एक जो एक नैरेटिव ओवरऑल इत्तेहादी गवर्नमेंट का चल रहा है, उससे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसका एक पार्ट अदलिया भी है उसमें डिवीज़न है, और एक इदारा अगर ए न्यूट्रल है तो दूसरा इदारा आप कहते हैं कि बायस है। अच्छा सर, एक तो इसका जवाब दे दीजिए, और दूसरा ये बताइएगा कि गवर्नर बलूचिस्तान की तकरीरी हुई है, क्या आप लोग ऑन बोर्ड हैं उनकी तकरीरी जो वाली खान साहब को अपॉइंट किया गया वहाँ पर? देखिए, हमने कभी तकरीरियों को कोई मसला नहीं बनाया, और नहीं उस हवाले से मीडिया में कभी कभी सुन लेते हैं, और कभी हमारे बारे में भी कुछ आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात आज तक कोई इतनी मुश्किल सामने नहीं आई है। मुशावरत से सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी रहा इदारों के अंदर डिवीज़न, जिस हवाले से आप मेंशन कर रहे हैं, मैं उस हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल एक तासुर ज़रूर है कि पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल मिलिट्री हो, फौजी सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, मुख्तलिफ तकसीम हो गई है। अभी नजरियाती तकसीम जो है ये इन्हीं की बरकतों से हुई है, और ये ज़ाहिर है तब होती है जिस वक्त कोई बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत उसकी पुश्त पर होती है, और वहाँ से तार हिलाए जाते हैं, वहाँ से हौसला अफजाई दी जाती है। ये चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर एक सवाल ज़रूर है जिसका जवाब कभी भी मुतलाश है। इमरान खान नौसरबाजी सही, लेकिन उनके दौर में आज से महंगाई कम थी, आज ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, इस पर क्यों नहीं? बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, और आपको याद होगा उस हुकूमत में मैंने जलसों में कहा था कि मुझे अब इसकी फ़िक्र नहीं है कि मुल्क गिर गया है,
मुझे इसकी फिक्र है कि इसके बाद मुल्क को हम उठाएंगे कैसे। तो आज आपको अगर वो बात याद आ रही है तो उसको आप समझें। मैंने कहा कि हम दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल में आदमी जितना निकलने की कोशिश करता है उतना धंसता चला जाता है। हम इस सूरत हाल से वाबस्ता हैं और ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। मौलाना साहब आपने कहा कि हम इलेक्शन दलदल में फंसे हुए तो नहीं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तो अगर वो लोग तैयार हैं तो क्या आप भी तैयार हैं? मैंने कहा आपसे कि हम तैयार हैं और हमने तो पूरा कंपेन इस पर चलाई थी कि दोबारा इलेक्शन कराऊं, लेकिन आज जो रियासत को सूरत हाल दरपेश है वो मैंने तफसील से आपके सामने कही थी कि इन पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी है। मौलाना साहब एक तासर जो है वो ये मिल रहा है कि जमहूरी जितनी भी PDM की जमातें हैं वो तो इलेक्शन करवाना चाह रही है, लेकिन JUI जो है वो इसकी मुखालिफ है। ये ऐसा क्यों है सर? मैंने अपना मौक़िफ़ बड़ा वज़ाहत के साथ दे दिया, मेरे ख्याल से मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हर दफ़ा इससे पहले भी तारीख में हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसा मसला मसाइल आप आगे बढ़ के मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करते आ रहे हैं, तो इस दफ़ा भी आप कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते? किसी तरह से जो सूरत हाल है, क्योंकि ये तो आप देखिए कन्फ्रंटेशन है हर तरफ से, देख रहे हैं आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला सामने आ रहा है, तो ऐसा कोई आप कदम उठाएँ कि मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें, मुल्क को आगे बढ़ाएँ। मुश्किल ये है कि आज सियासतदानों में मुफ्ती महमूद नहीं है और उसके मुकाबले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है। बहुत मुश्किल ये है जी। अल्लाह साहब जो इमरान खान ने कहा है कि बात करने के लिए तैयार है किस